हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सभी। आज हम केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। ये चैप्टर इजी चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर है। इसमें हम एलिमेंट्स के साइज, उनकी एनर्जीज और डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। चैप्टर की वेटेज की बात करें तो चैप्टर का जो वेटेज है वो 3 to 4 मार्क्स है, बट चैप्टर आपका कंसेप्चुअल है। इसमें आप एलिमेंट्स की जो स्मॉलेस्ट प्रॉपर्टीज हैं रिगार्डिंग देयर क्लासिफिकेशंस इन पीरियोडिक टेबल्स एंड देयर सम केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। सो इस चैप्टर्स में आप हम सभी जो छोटी छोटी टर्म्स हैं रिलेटेड टू एलिमेंट्स एंड देयर बिहेवियर वो डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहें अपने इस प्यारे से चैनल वर्सेस क्लासेस में, और आपकी जो भी क्वेरीज होंगी या जो भी आपकी प्रॉब्लम्स है रिलेटेड थर्ड चैप्टर से क्लासिफिकेशन एलिमेंट के, वो यहाँ पे आपको कंप्लीट मिलेंगी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। चलो, हमें क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों हुई? एलिमेंट्स का हम क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? इसमें क्लासिफिकेशन की नीड इसलिए हुई, a group of the elements are distinct, so it is difficult to understand the properties of each element separately. So we needs to try the classification of elements. So now we discuss the different classification of element with the first scientist is known as Dauvergne traits. Dauvergne traits. Traits से आपको बताएंगे, traits means the group of 3 elements. Trait means the group of 3 elements. So Dauvergne makes the group of the 3 elements and he explained that the mass of second element is arithmetic mean of the atomic mass of first and third elements. Traits means क्या है? Group of 3 elements. Group of 3 elements. तो ये एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, द फर्स्ट ट्रेट इज, फर्स्ट जो ग्रुप है आपका लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। द मास ऑफ लिथियम इज 7, it is observed by experimentally, and the mass of sodium is 23 and the mass of potassium is 39. So the average mass of first or third element is equal to the mass of second elements according to Dauvergne traits. तो हम यहाँ देखते हैं 7 plus 39 divided by 2 equals to 46 divided by 2 is 23. The second group of traits given by Dauvergne, an explanation of the classification of element is second group is calcium, strontium and barium. Calcium, strontium and barium. The calcium mass is 40, is 88 and is 137. So the average mass of first and third element equal to the mass of second element according to Dauvergne traits. So 40 plus 137 divided by 2, 177 divided by 2 equals to 88.5, which is approximately equal to the mass of strontium. And the third traits of Dauvergne law: chlorine, bromine and iodine. Chlorine, bromine and iodine. The mass of chlorine is 35.5. It is observed experimentally. The mass of bromine is 80 and the mass of iodine is 127.
So the average mass of first and third element equal to the mass of second elements according to and 35.5 plus 127 divided by 2 equals to 162.5 divided by 2. डिवीजन करते हैं तो आपका आ जाएगा 81.5 which is approximately equal to the mass of the bromine according to Dovenier traits. तो हम देखते हैं डोवेनियर ने कहा था जो थर्ड सेकंड एलिमेंट है उसके मास फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट एवरेज मास होगा. इट इज कॉल्ड डोवेनियर. तो जी इनका जो सक्सेसफुल था क्या रहा, दे अरेंज द एलिमेंट विद इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. दे आल्सो व्हाट इज द बेसिक कंसेप्ट ऑफ अरेंजमेंट्स ऑफ एलिमेंट इन द डिफरेंट ट्रेट्स ग्रुप विद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास. इनका भी जो मेन वो था इसके बेस पे क्या था उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास. बिना किसी बेस के तो क्लासिफिकेशन किया नहीं होगा. सो ही क्लासिफाई द एलिमेंट विद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास. बट Doveniers traits law do not successful. So there are some demerits of Doveniers traits. Demerits of Dovenier traits are all known elements do not classified, and second demerit sometimes laws do not obey by the group. What's the reason? At the Dovenier time 30 elements are discovered, but Dovenier gives only 3 groups of elements. उन्होंने केवल 3 ही ग्रुप का एक्सप्लेन किया था with according to his law, and sometimes this laws do not obeyed by same group. सेम ग्रुप में कभी कभी फॉलो नहीं कर रहा था. सेम ग्रुप में फॉलो किस तरह नहीं कर रहा था? फॉर एग्जाम्पल देख लेते हैं यहाँ पे जैसे हमने पढ़ा था क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. तो अगर हम रिस्पेक्टिव फ्लोरीन का मास कैलकुलेट करते हैं अकॉर्डिंग टू डोवेनियर ट्रेट्स, इट डज नॉट फॉलो द सेम ट्रेडिशन. सो समटाइम्स द लॉ ऑफ डोवेनियर ट्रेट्स डू नॉट फॉलोड बाय ग्रुप. ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम. न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल. न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल अकॉर्डिंग दिस रूल, न्यूलैंड क्या थे? म्यूजिक लवर थे. उनको म्यूजिक से भी प्यार था और साथ में केमिस्ट्री से भी प्यार था. तो उन्होंने कहा कि क्यों ना केमिस्ट्री और म्यूजिक को आपस में मिक्स कर लिया जाए जिससे उनको केमिकल एलिमेंट है उनकी स्टडी में थोड़ा सा आसानी हो जाए. तो उन्होंने क्या किया, जो म्यूजिक के 7 ऑक्टेव्स थे, एलिमेंट्स को उन ऑक्टेव के उसमें अरेंज करना स्टार्ट किया. सो अकॉर्डिंग टू उन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 and arrange the element with increasing atomic mass. Increasing atomic mass. Increasing order of atomic mass. So according him, when the elements are arranged with increasing order of their atomic mass, the every eighth elements repeat the property like first element after fixed interval. इन्होंने ये कहा कि अगर हम इन एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग बढ़ते हुए मास के अकॉर्डिंग इन 7 ऑक्टेव्स में डिफरेंट करते हैं तो एवरी 8th एलिमेंट जो होगा वो पहले एलिमेंट की तरह अपनी प्रॉपर्टी को रिपीट करेगा. इट इज न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल. एग्जांपल देखो, लिथियम से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8. सोडियम हैज सेम प्रॉपर्टी लाइक एज लिथियम. यहाँ से काउंट करो बेरिलियम 1 2 3 4 5 6 7 8. मैग्नीशियम हैव सेम प्रॉपर्टी लाइक एज बेरिलियम. आप कहीं से भी काउंट कर सकते हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8. एवरी 8th एलिमेंट शोज अ repetition of the property like as first element. So according this classification of elements, the physical and chemical properties of elements are periodic
periodic function of their atomic mass. अब पीरियोडिक फंक्शन क्या है? पीरियोडिक फंक्शन एक्सप्लेन दैट, पीरियोडिक फंक्शन को हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी. पीरियोडिसिटी पीरियोडिसिटी टर्म्स न्यूलैंड्स ने एक्सप्लेन की. द एलिमेंट हैव सच पीरियोडिक फंक्शंस, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं जो आफ्टर सच इंटरवल के बाद चेंज होती हैं और रिपीट होती हैं. इसके लिए इनको डिवे मेडल मिला. ठीक है, पीरियोडिसिटी क्या होती है? पीरियोडिसिटी जनरली है, पीरियोडिसिटी इज जनरली एक्सप्लेन दैट द रिपीटेशन ऑफ properties after fixed interval. फिक्स्ड इंटरवल के बाद प्रॉपर्टी रिपीट होती है. जैसे यहाँ देखते हैं लिथियम आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन. आफ्टर देन द इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट रिपीट्स द प्रॉपर्टीज. लिथियम क्या है आपका? एल्कली मेटल्स है, तो एल्कली मेटल ऑल्सो, सोडियम ऑल्सो शो अ एल्कली मेटल नेचर आफ्टर 7th एलिमेंट या आफ्टर फिक्स इंटरवल. कुछ फिक्स इंटरवल के बाद अपनी प्रॉपर्टीज को चेंज करता है. इसको हम दूसरी बात लैंग्वेज में कह सकते हैं, दूसरी लैंग्वेज में कह सकते हैं या ग्रेजुअल चेंज और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ elements. It is called Newland's octave rule. Okay? When he arranged the element with increasing order of their atomic masses, the every 8th element repeat the properties like as first element. It is called Newland's octave rule. And the law statement is the physical and chemical properties of element are the periodic function of their atomic mass. कि अगर हम एलिमेंट को मास के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं तो एवरी 8th एलिमेंट जो मास की प्रॉपर्टी रिपीट करेगा वो लाइक एज फर्स्ट एलिमेंट में रिपेंड करेगा. दूसरा सिंबल ये था कि यहाँ पे जो एलिमेंट थे जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी वो एक ग्रुप में फॉलो कर रहे थे. तो दीज आर द सक्सेस पॉइंट्स ऑफ न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल. बट सम डिमेरिट्स of Newland's law. The discovery of noble gas. At the time of Newland's, noble gases are not discovered. So when the noble gases are discovered, the eighth element is noble gases. Here is helium, neon, and here is argon. So according to Newland's, every 8th element 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 is the noble gases. It is the inert gas, so it does not show the same property like as lithium. So this law not obeyed by noble gases. Second demerit is discovery of heavy elements. And the demerits of Newland's rule is it is applicable only lighter element up to calcium. फर्स्ट डिमेरिट था नोबल गैस डू नॉट फॉलो द लॉ. एवरी 8th एलिमेंट आपका नोबल गैस है, सो ही डू नॉट फॉलो द लॉ. एंड डिस्कवरी ऑफ हैवी एलिमेंट्स. कैल्शियम क्या हैवी एलिमेंट आएगा जिसमें ये वाला लॉ एप्लीकेबल नहीं हो रहा था. एंड द थर्ड डिमेरिट इट इज एप्लीकेबल ओनली लाइटर एलिमेंट, जो उसको एक्सप्लेन करता है कि ये केवल कैल्शियम तक फॉलो करता है. सो इट इज द न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल एंड इट्स डिमेरिट्स. क्लियर? इसके बाद नए साइंटिस्ट आए दिमित्री मेंडलीव्स. ही गिव्स अ क्लियर एंड वास्ट आइडिया ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जिससे हमें एलिमेंट्स को समझने और उनकी प्रॉपर्टी को समझने में
काफ़ी हेल्पफुल। और दिमित्री मेंडलीव की जो पीरियोडिक टेबल है वो क्लासिफिकेशन और एलिमेंट्स के लिए एक माइलस्टोन एस्टेब्लिश हुई। तो आगे अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। चले आगे। ओके। So after Newlands, new Russian scientist named as Dmitry Mendeleev give a proper classification of element। उन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया वो एलिमेंट की क्लासिफिकेशन के लिए एक माइलस्टोन एस्टैब्लिश्ड हुआ। अकॉर्डिंग हिम एलिमेंट्स आर शोज द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। इन्होंने भी एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस में अरेंज किया। इनके साथ साथ एक साइंटिस्ट और थे जिन्होंने एटम के वॉल्यूम और उनके मास का रेशियो लेके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया क्लासिफिकेशन एलिमेंट का। तो पहले हम मेंडलीव का पढ़ते हैं, बाद में हम लॉथर मेयर ने जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एलिमेंट दिया था उसको भी डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं मेंडलीव पीरियोडिक टेबल क्या है। अकॉर्डिंग मेंडलीव द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of element shows periodicity with increasing order of atomic mass. So it means when the elements are arranged with increasing atomic their mass, जब उनको उनके एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग अरेंज करते हैं, सो दे शो द पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, न्यूलैंड्स एक्सप्लेन दैट पीरियोडिसिटी इज द रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल। आफ्टर फिक्स्ड इंटरवल किसी केस में एवरी 8th एलिमेंट रिप्रेजेंट दैट, बट मेंडलीव एक्सप्लेन दैट the element shows the properties after fixed interval, not 8th element। इन्होंने 8वें एलिमेंट का एग्जांपल नहीं लिया, 8वें का वाला पॉइंट हटा के फिक्स्ड एलिमेंट कि कुछ टाइम बाद वो वापस अपनी प्रॉपर्टी को शो करेगा लाइक एज फर्स्ट एलिमेंट। सो इट इज कॉल्ड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में उन्होंने क्या क्लासिफिकेशन दिया? ही क्लासिफाई द पीरियोडिक टेबल इन 8 ग्रुप, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ। 8 हॉरिजॉन्टल सॉरी 8 वर्टिकल ग्रुप एस्टैब्लिश किए, बड़े ग्रुप। अब आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक जीरो ग्रुप भी है, फर्स्ट ग्रुप से पहले ही जीरो ग्रुप भी है, बट नहीं, इट इज अ मॉडिफाइड, वो मॉडिफाइड पीरियोडिक टेबल है वो, ठीक। बट एक्चुअल जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल थी, इट इज ओनली अ 8 ग्रुप। इट इज ऑल्सो क्लासिफाइड 8 ग्रुप इंटू अ 2 सब ग्रुप ए एंड बी। ये पीरियोडिक टेबल मेंडलीव द्वारा दी गई, इसमें ही क्लासिफाइड एलिमेंट 8 वर्टिकल कॉलम एंड 7 हॉरिजॉन्टल पीरियड। क्या पॉइंट डालेंगे आप? 8 वर्टिकल कॉलम्स एंड 7 हॉरिजॉन्टल पीरियड्स। काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 8 चलेंगे, ठीक। एंड 1 2 3 4 5 6 7 दीज आर द 7 पीरियड्स। इसको हम काउंट करते हैं तो यहाँ पे आएगा 1 2 3 4 5 6 7। क्लासिफिकेशन 8 वर्टिकल कॉलम्स एंड 7 हॉरिजॉन्टल। each columns are classified into 2 subgroups A and B। each column और each group भी कह सकते हैं इसको, और group, each group classified into a 2 subgroup। अच्छा, क्लासिफिकेशन में क्या फायदा हुआ? ग्रुप और सब ग्रुप में क्या फायदा मिला हमको? ग्रुप एंड सब ग्रुप। जो सब ग्रुप देखते हैं, जैसे आपका फर्स्ट का बी
सेकंड का ए या हम थर्ड का बी, कोई भी सब ग्रुप रिप्रेजेंट करते हैं, तो इनमें क्या होना कि जितने भी सब ग्रुप के एलिमेंट थे उन सबकी प्रॉपर्टीज क्या थी, सेम. द प्रॉपर्टीज आर सेम. The elements are arranged with increasing order of their atomic masses. The subgroup elements are same properties, and the whole group A and B, whole group have same valency. जो फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट थे उन सब की वैलेंसी एक सी थी, तो उनको ग्रुप में रखा गया. और ऐसे एलिमेंट या ऐसे एटम जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उनको सेम सब ग्रुप में रखा गया. इससे क्या मतलब एक प्रॉपर चैनल मिल गया क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का. अच्छा, और भी कुछ पॉइंट थे. इससे क्या हुआ, मेंडलीफ ने क्या है कि अरेंजमेंट जो किया वो एटॉमिक मास के बेस पे नहीं किया, उन्होंने ऑक्साइड भी फॉर्मेशन किए. ऑक्साइड फॉर्मेशन से क्या पता लगा कि जैसे फर्स्ट वाले हैं, ये फर्स्ट ग्रुप में है, तो उन्होंने फाइंड किया जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं, अगर वो उनका जो ऑक्साइड है वो कैसा ऑक्साइड बनाएंगे, M2O टाइप ऑक्साइड बनाएंगे. सो ऑल द एलिमेंट्स which form this type of oxide placed in a same group, and in second case those elements which form a MO2 types oxide he placed in second group. So he find that every element oxide and arranged with their increasing atomic masses as well as the valency of the ग्रुप. उन्होंने पूरी पीरियोडिक टेबल को ऑक्साइड्स के बेस पे भी क्लासिफाइड किया. जो एलिमेंट्स के ऑक्साइड हैं उनको उनके नेचर के अकॉर्डिंग और उनकी प्रॉपर्टीज के बेस पे ग्रुप में अरेंज किया. फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट, दोज एलिमेंट विच फॉर्म दिस टाइप ऑफ ऑक्साइड दे प्लेस्ड इन फर्स्ट ग्रुप, दोज एलिमेंट फॉर्म दिस टाइप ऑफ ग्रुप इन सेकंड ग्रुप एंड अदर एलिमेंट्स. सो नाउ वी राइट डाउन द मेरिट्स पॉइंट ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल. कि जो मेंडलीफ थे उनकी पीरियोडिक टेबल के मेरिट्स पॉइंट्स कौन कौन से थे. Merits, advantages, merits of Mendeleev's periodic table. क्या क्या पॉइंट्स थे बताओ. देखो, पहला तो सबसे इजी पॉइंट तो जो आपका फर्स्ट पॉइंट है, इट इज ऑल known 63 elements are placed in table. उनके टाइम पे जितने भी एलिमेंट डिस्कवर्ड थे उन सबको प्लेस दिया गया इन अ पीरियोडिक टेबल. सेकंड, ऑल एलिमेंट्स आर arranged in increasing order of atomic mass. एलिमेंट्स को उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज किया गया. थर्ड, सिमिलर एलिमेंट्स, सिमिलर प्रॉपर्टीज of elements placed in same group. And dissimilar properties placed different group. ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उनको सेम ग्रुप में रखा गया, और ऐसे एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट थी, जो डिफरेंट प्रॉपर्टी यूज कर रहे थे, उनको डिफरेंट ग्रुप में प्लेस मिला. अच्छा, इनकी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थी, इन्होंने कुछ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को भी बताया. तो अगला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनका, ही गिव्स अ वैकेंट place for undiscovered elements.
कुछ एलिमेंट्स जो डिस्कवर नहीं थे मेंडली पीरियोडिक टेबल्स के टाइम पे, तो उन्होंने आने वाले जो एलिमेंट आएगा, नेक्स्ट एलिमेंट आएगा, उसके लिए पहले से ही स्पेस दे दी गई। जैसा एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे एल्युमिनियम और सिलिकॉन के बाद। तो एग्जांपल क्या था, उन्होंने दिया एका एल्युमिनियम। एल्युमिनियम के बाद जो एलिमेंट आएगा उसका नाम पहले ही डिस्कवर, एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन, जिसको अभी हम जानते हैं गैलियम के नाम से, गैलियम। इसको हम जानते हैं जर्मेनियम, GAGE। इनके लिए पहले ही स्पेस किया। अब अगर आप पीरियोडिक टेबल देखते हैं तो इस प्लेस पे जो एलिमेंट आया उसका नाम गैलियम और यहाँ पे जो था उसका नाम जर्मेनियम। ठीक है। He also described the properties of undiscovered element। जो अनडिस्कवर्ड एलिमेंट थे उनकी प्रॉपर्टीज को भी वो एक्सप्लेन किया उन्होंने बताया कि जो एलिमेंट है, जो जर्मेनियम है और गैलियम और जर्मेनियम है, उनकी जो प्रॉपर्टीज है, उनका ऑक्साइड्स किस टाइप का होगा, हैलाइड्स किस टाइप का होगा, वो एक्सप्लेन कर गए। क्यों? क्योंकि उनका एक और मोटो था जो क्लासिफिकेशन किया था, नॉट ओनली द एटॉमिक मासेस बट इज ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंसी की बेस पे भी उन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। तो उन्होंने ऑक्साइड्स और हैलाइड्स के फॉर्म में भी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट डिस्क्राइब किया। सो ही डिस्क्राइब दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल अगर देखते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए इन्होंने क्या, जो गैलियम है, गैलियम का मास यहाँ पे एक एल्युमिनियम, इनका मास उन्होंने बताया था 68, बट जो नाउ प्रेजेंट टाइम पे जो इसका एक्चुअल मास है वो है 70, एक्चुअल मास है 70। जर्मेनियम का मास अकॉर्डिंग मेंडली इज 72, बट नाउ at present the mass is 72.6 gram. So these are the merits point of Mendeleev periodic table. Clear? Now some demerits points of Mendeleev periodic table. ये क्लासिफिकेशन भी कुछ टाइम बाद सक्सेस नहीं हुआ, काफी हद तक सक्सेस हुआ। पहली बार किसी ने एलिमेंट्स का प्रॉपर क्लासिफिकेशन दिया इन अ टेबुलर फॉर्म। हम एक डाटा हमको गिवन था, अब इस डाटा के बेस पे हम एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते थे विद इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मासेस के बेस पे हमने एटम्स को डिस्क्राइब करना स्टार्ट किया विद अ प्रॉपर वे। जिनकी प्रॉपर्टी सेम थी उनको सेम ग्रुप में रखा, जिनकी डिफरेंट थी उनको डिफरेंट रखा। बट देयर आर द सम disadvantages of Mendeleev periodic table. Now we discuss it. So demerits क्या थी? पहली demerit मतलब कमियां। क्या कमियां हैं? देखो फर्स्ट की बुझे the position of isotopes क्या होते हैं? Those elements which have same atomic number but different atomic mass। ऐसे एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम है बट उनका मास डिफरेंट है। बट द क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग बाय मेंडलीव पीरियोडिक टेबल विद इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। जो आइसोटोप्स थे, फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन 1 1 2 एंड 1 3, इनका मास डिफरेंट था, सो ही प्लेस्ड इन अ डिफरेंट ग्रुप बट एटॉमिक नंबर इज सिमिलर। सो फर्स्ट डिमेरिट्स, उन्होंने आइसोटोप्स को कोई पोजीशंस नहीं दी। सेकेंड डिमेरिट्स पॉइंट्स, जो सेकेंड इनका डिमेरिट्स पॉइंट है, अभी भी डिबेट का एक टॉपिक है, वो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को कोई पोजीशन फिक्स नहीं। थर्ड डिमेरिट्स पॉइंट्स, डिसिमिलर एलिमेंट्स placed in same group।
and 4 similar elements placed different group. देखो सिमिलर एलिमेंट की बात की है, जैसे फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं, फर्स्ट ग्रुप में सारे क्या हैं, एल्कली मेटल्स हैं। हेलिना ने की रब से फरियाद, तो आपका हो गया हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। तो उनकी प्रॉपर्टी अलग थी। और कॉपर और जिंक ये हैवी मेटल्स हैं, इनको उस ग्रुप में प्लेस किया। अकॉर्डिंग टू द मेटली पीरियोडिक टेबल देयर क्लासिफिकेशन इज प्रॉपर, बट the some properties of the metal are differ from alkali metals. So the dissimilar elements placed in a same group, ऐसे एलिमेंट को सेम ग्रुप में प्लेस भी, ये इनका डिमेरिट्स पॉइंट था। एंड द सिमिलर एलिमेंट प्लेस्ड इन डिफरेंट पोजीशंस, जैसे आपका ऑरस है, ऑरस गोल्ड, वो प्लेटिनम के साथ रिजेंबल करता है, बट उसको पीरियोडिक इन मेंडली पीरियोडिक टेबल में एक अलग प्लेस दिया गया। सो दीज आर द डिमेरिट्स पॉइंट ऑफ मेंडली पीरियोडिक टेबल। मेंडली पीरियोडिक टेबल के जो ड्रॉबैक्स थे उनको नेक्स्ट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में उसको इम्प्रूव किया गया। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपको एक्सपेंड कर देगी 18 डिफरेंट ग्रुप में एंड 7 डिफरेंट पीरियड्स में, जिसको डिस्कस करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। सो प्लीज़ आप अपने इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।